everyone. Holistic healers. Earlier we were nightingales. Now we are holistic healers. So I think this name is given by us since May 2023. Okay. Earlier we were nightingales. So and the agenda was the same. Always said we will share our knowledge in this group and some excursions or some knowledgeable picnics. Okay, like we went to Keshav Srishti. So planning to have some another picnic also now. But anyway, for today, now we have started our first CME online. So I better concentrate on this topic and I will invite Dr. Hetal Karkar. She is a practicing doctor since 15 years and she has passed from Mittal College, same as my college. And so I'll invite Dr. Hetal Karkar. Are you there? Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, Bila ma'am. So you please Okay. introduce our speaker of the day, Yes, ma'am. the Yes, ma'am. moderator, and please introduce her. Yes, ma'am. Yeah, Yes. thank you. Yes. Good afternoon, all. Our today's topic is Agni Visarpa, Ayurvedic and modern perspective with herpes zoster. We are honored to have Dr. Kirti Mandar Deo ma'am as our esteemed speaker. Dr. Kirti Deo ma'am has highly experienced Ayurvedic physician and clinical cosmetologist practicing over 27 years based on Thane. She specialized in blending ancient Ayurvedic wisdom with the modern dermatology. Ma'am has done MD in Ayurveda with PG diploma in skin aesthetics, PG diploma in trichology, and certificate course in aromatherapy. She is renowned for her expertise in skin and hair health, pioneering treatment under her brand Swasthakrit Ayurvedic Cosmetology. She is also present acting vice president of Ayurved Vyaspit Thane branch. Ma'am has received second best prize for best scientific paper presentation at International Seminar Ayurved Parva, felicitated by Nitin Gadkari sir. We are grateful that your presence. We look forward, ma'am, we are grateful for your presence and look forward to learning from your expertise today. Without any further delay, I invite Dr. Kirti Deo ma'am to begin their presentation. Thank you so much. I'll first share my presentation. Let's see if it is visible and then we'll start today's presentation. Yes, ma'am. It is visible, right? Yes. Okay. Before we start the presentation, I request all the attendants to mute themselves so that there is no disturbance during the presentation. Ma'am, you can begin with your presentation. मैडम यू आर ऑन म्यूट मैंने अभी म्यूट ऑल किया सो आपका भी म्यूट हुआ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ Yeah. So first and foremost, thank you for this opportunity. Good afternoon, one and all. This is a great initiative for connecting with one another. I sincerely thank Holistic Healer Group for considering me. I thank Dubey Madam for considering my name and Bella Madam and Dr. Shweta Madam for suggesting that we start CME today. The time given is very important for us. So we'll start our today's presentation directly. So the today's presentation is based on Agni Visarpa. I will start off with little bit of modern diagnosis because we need to know both the things. Many a times patient comes while taking allopathy medicine and ask for other options. There are few cases that I'll be sharing today. So little bit of modern diagnosis followed by case series. I'll be presenting about 10 cases today. Granthokta references for the Agni Visarpa, Kalpabhyas and few discussion points.
So what is actual herpes zoster? It is the causative factor is VZV virus, that is varicella zoster virus. So this is the same virus which causes varicella, that is chickenpox in young kids, and zoster, that is shingles or zona, that uh, occurs in elderly people. Post age 50, this goes on increasing, the incident goes on increasing. Here, basically, what happens, the risk factors are advanced age, as I said. Second is distress or mental stress. Many of the times, low immunity, though, is there. Not everybody succumbs to this, but stress is the major factor where this latent. Yeah. So, it both produces the same virus. See, in the picture, now I'll just show it in this, it will be better. So, inoculation is introduction or entry. So, entry of VZV virus is through oral mucosa, and this is the Waldeyer's ring. So, this is a ring that is present at the nasopharynx and oropharynx area, and this acts as the first level of immunity, what we can say is immune defense of our body. So whatever enters our body, it first has to fight this Waldeyer's ring. Then it enters into the body, and primary skin infection is in the form of chickenpox. So we all know the incubation period is 2 to 14 days and all. I won't go into that because chickenpox is not the today's topic. And this ingested and inhaled, both the particles first have to fight with this ring, and then it enters into the body. The virus, the infection caused by VZV, that is varicella, is of retrograde transport. So what happens here in retrograde transport? The cargo, that is the ingested or inhaled particles, they first go inwards towards the cell body. And later on, these get enacted, or they get, these particles enter the tips of sensory nerve endings. And here they combine and stay together at the dorsal root ganglion. So here the virus that once enters into the body stays in the latency stage post chickenpox. And what is anterograde? So in anterograde transport, whatever is left behind after chickenpox, it remains as a memory in the body, and it moves outward into the periphery. Whenever there is weakened immunity or suppressed immunity, this virus reactivates. So generally, whenever patient says ki I had chickenpox in my young days, chances are that this patient might have this shingles or herpes zoster at a later period, because those virus or those memories are there in the body. Then comes dermatome. As here we have seen, what is dermatome? Dermatome is a specific area on the skin where the sensory fibers from a single spinal nerve root reaches. So there are in all 30 primary dermatomes, which are subdivided into 4 types. So when we look at this now, we understand the picture clearly. Why it doesn't happen anywhere on the body? Why herpes zoster occurs mainly on the trunk area? Why it occurs only on the face area? Why is it unilateral? Why is it not bilateral as it is in chickenpox? So once we understand this dermatome, once we understand this anterograde transport, we understand it better. So in what are the 4 areas where it is divided? The first one is C1 to C8, and in this the neck, shoulder, arms and hands, this area is covered. Then T1 to T12, in this area, the herpes zoster, when it reactivates, it occurs around chest, upper abdomen and back. In L1 and L4, that is the third part or third segment, hips, front of the thighs and inner or front of the legs and feet. And the last is S1 and S5, buttocks, genital region, back of the legs and outer edges. So majorly it affects C1 to C8 and T1 to T12. Okay, we see one more sub variety, that is herpes zoster ophthalmicus, that affects the orbital region. It occurs due to V1, that is the 5th cranial nerve ophthalmic division of trigeminal nerve. So whenever it gets affected,
we see it in the form of ophthalmicus. Again, this ophthalmic nerve is divided into three parts: frontal, lacrimal, and nasociliary. So frontal is forehead and scalp. Lacrimal is upper eyelid and tear gland. And nasociliary is tip of the nose, iris, and cornea. So whichever nerve gets affected, the herpes remains or at that specific region. Just a moment. My slide is fixed. A minute. Hmm. So as we can see here in the fourth slide, sorry. Yeah. So here it is, we have basically three clinical stages: pre-eruptive stage. In this pre-eruptive stage, there are generally vague symptoms. It can be internal system symptoms. It can be specific on a specific raised part of the body. It is seen and documented that these chances or recurrence of herpes zoster has increased post COVID-19 vaccination. This has been documented in research papers, and thus, because of that, we see more cases of herpes zoster in this new post 2020 scenario. The reactivation occurs, and these symptoms are patient might feel fever and chills. He can have itching or tingling at a specific area. A general malaise is felt by the patient. कुछ करने का ही मन नहीं करता है. Sometimes they have stomach upset. Sometimes there is redishness, and sometimes patient बताता है कि खींच रहा है. There is nothing on the hand, there is nothing on the surface, but अंदर से कुछ तो चुभन है या खींच रहा है, ऐसे उनको लगता है. As we can see here, dermatome का तो I said, malaise, photophobia ये बहुत दिखता है पेशेंट्स में. Sometimes the patient doesn't feel like going out. गर्मी सहन नहीं होती है, body heat बढ़ा हुआ रहता है. There is no temperature as such, but he feels heat inside the body. Sometimes, not always, but headache होता है. Along with that, vomiting sensation या nausea हो सकता है. In the acute eruptive phase, which is most contagious, इसमें क्या होता है कि multiple umbilicated painful vesicles होते हैं which burst open, ulcerate and dry out, that is cap formation होता है, as we can see in this picture. So ये total जो phase है from this to this, it takes around 2 to 4 weeks. Along that, during that duration, the patient, this is most contagious, so patient has to stay at home. We need to tell the patient not to go out and mingle, not to go in the crowd. And जो pain होता है during this period, the pain is very severe in the way that patient doesn't feel like doesn't feel better even after taking NSAIDs. कि ibuprofen लिया या और कुछ लिया तो भी पेन सबसाइड हुआ ऐसे नहीं लगता है. एंड क्रोनिक में जब होता है, मेजरली द क्रोनिक आफ्टर इफेक्ट इज पेन दैट इज फेल्ट एट दैट लेवल. सो ये जो पेन है, इट्स generally goes over for more than 4 weeks or more, sometimes even 3 months तक patient feels the pain. Along with that, dysesthesia, that is disturbed touch based sensation. वहां पे कुछ है भी नहीं, बट पेशेंट स्टिल फील्स कि वहां पे कुछ तो चुभन है, वहां पे कुछ तो चल रहा है, चींटी चल रही है, थोड़ा सा गीला लगता है, पिंस एंड नीडल लगता है, शॉक लगा जैसे लगता है, या नंबलिंग होता है, समथिंग और द अदर फील होते रहता है. सो दैट इज डिस्थेसिया एंड पैरेस्थेसिया. दिस इज क्वाइट नॉर्मल, एज वी सॉ कि वो सेंसरी नर्व पे होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट ऑन सेंसरी नर्व रिमेन्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड उस वजह से ये लॉन्ग टर्म क्रोनिक इम्पैक्ट उसका रह जाता है. Sometimes clinical pattern vary होता है. We see variations, not only as said here. So sometimes it is ophthalmicus, it is related or it remains only on the one side of the face. It can turn into an emergency अगर sclera, retina, everything is affected. Then there's one Ramsay-Hunt syndrome. So what is that? इसमें facial palsy होता है. So one side of the face, वहाँ पे the muscles lose control. So वहाँ से वो drooping दिखता है या खिंचाव दिखता है. So it is because of 7th and 8th nerve, cranial nerve के involvement की वजह से we see this. Along with that,
डेसिमेटेड, मतलब दैट इज जनरलाइज्ड, स्पेसिफिक कहीं दिखता नहीं, इट इज ओवरऑल. दिस इज वेरी अनकॉमन टाइप ऑफ herpes zoster, but it is seen majorly in immunocompressed cases. Then comes deep herpes zoster. As we see it on the upper part on the skin, this virus affects not only skin but also mucosal membrane, and because of that वो internally also ocular region पे, perianal region पे या adjacent to buttocks यहाँ पे भी हो सकता है. And sometimes ulceration occurs, which is frequent in this deep type of herpes zoster, and sometimes GI system is also involved. So as we see the symptoms outwardly, so imagine the patient feeling the same in the mucosal lining of our GI system. The pain will be very terrible. So this is a deep type of herpes zoster. One is purpuric. So purpuric में, as the name suggests, it is related to blood getting clotted. So bleeding occurs under the skin. It causes dark red or purplish type of buried scars. और उस स्कार्स ड्राई आउट होने को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. इट गोज अवे, स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है, बट स्टिल द कलर इज लाइक वैस्कुलाइटिस. सो समटाइम्स वन गेट्स कंफ्यूज बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ herpes zosters. वन इज CN, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का herpes zoster. इसमें इम्यूनो कॉम्प्रेस, दैट इज HIV पॉजिटिव या एड्स केसेस में सच टाइप ऑफ herpes zoster बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. In this the symptoms vary because central nervous system पे affect होने की वजह से it can cause personality changes, it can cause headache, it can cause confusion within the patient, nausea, and sometimes gait, चलने में भी उनका gait बदल जाता है, उनका balance निकल जाता है. These are certain things that occur during herpes zoster, which is of central nervous system type. This is because जो अपने अंदर वेसल्स होते हैं उनके वॉल का थिकनिंग भी हो जाता है, एनलार्जमेंट भी हो जाता है, एडिमा भी आ जाता है. सो नेचुरली प्रेशर विद इन द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, कॉजिंग हेडेक, नोशिया एंड एवरीथिंग. Along with that, there are certain medications that can trigger herpes zoster. For example, psoriasis के certain medications एक modern के that can increase the risk of herpes zoster. सभी में होगा ऐसे नहीं, but immunocompromised है या excess of stress है या एज बढ़ते जा रहा है, एडवांस्ड एज है, ऐसे सब कंडीशंस में इफ द पेशेंट इज टेकिंग सर्टन एंटी सोरियाटिक ट्रीटमेंट, then risk of herpes zoster increases. Along with that, अगर RA का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्पेशली JAK inhibitors, this you can get all the information from any of the books, modern books, उसमें सब दिया हुआ है कि whenever there is increase in JAK inhibitors का medication RA के लिए, the chances or risk factor increases. So this is how the modern has visualized or explained herpes zoster, given the classification and all. Now let's see few of the cases. This is first case that I'll be talking about. This is a 45-year-old male. Basically his wife was Ayurvedic doctor. जब ये eruptions आए थे, पेशेंट को एडवाइस किया गया था by his wife कि it's better if you go and apply Jalauka. The patient was very भीरू, डरता था. So he said, I won't be applying. I'll continue taking medicines. So his first visit was after 4 days after the eruptions. So naturally eruptions आ गए थे. As you can see here, थोड़ा सा collection जैसे दिख रहा था. It was on the left side of the body. So trunk region पे था. On the frontal side as well as on the back. स्मॉल बॉयल्स थे, पेन काफी था, शीरशूल था उनको, एंड उसी के साथ आरक्तता उसके ऊपर थी. एंड पेशेंट का शेड्यूल वाज वेरी हेक्टिक. ही वाज ZTV में एग्जीक्यूटिव, तभी उनका चैनल पे बहुत सारा मतलब न्यूज चैनल है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था. ही कुडंट इवन कम होम बिफोर 11 PM. ही यूज्ड टू गो अर्ली एंड कम वेरी लेट एट होम. सो फिर वो रेस्ट करो, आराम करो, ये नहीं हो रहा था. स्ट्रेस फैक्टर तभी उनका बहुत ज्यादा था. आई हैड एडवाइज्ड ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ ऑफ द विजिट कि जलौकावचरण करेंगे हम, बट वो लिटिल बिट रिलक्टेंट थे. सो ऑन द फोर्थ, मतलब थर्ड डे फ्रॉम ही केम टू शो मी, दैट इज हिज सेकेंड विजिट, हमने उनको जलौका लगाए थे. एज यू कैन सी द प्रीवियस पिक्चर, यहाँ पे वो रेडिश थे, छोटे थे. टिल
4th डे ये बड़े हो गए थे, उनको प्रॉपर एक डिफाइंड शेप आ गया था, वेसिकल्स बोलते हैं वैसे, फील्ड फॉर्म आ गया था, इसके ऊपर पेन बहुत था। एंड द रीजन व्हाई ही केम फॉर अ ट्रीटमेंट वाज दैट कि ही सेड मुझे ये जो पेन है वो सहन नहीं हो रहा है, पेन किलर लेके भी आई कुडंट स्लीप एट नाइट, एंड हेंस आई केम फॉर जलोकावचन. So it was not his first choice of application of Jaloka. Just because he couldn't sleep at night, the pain was so severe that he came for treatment. The medicine given was total duration. See, here I have written the duration. Ki total treatment given was only for 17 days. The last visit was of 15 days. And patient used to, मतलब इतना hectic होके भी the pain was so severe that he couldn't control the pain, and hence he used to come and show me a day or two. मतलब फर्स्ट विजिट वॉज ऑन फर्स्ट, देन वॉज ऑन फोर्थ, फिर 6th को आए, फिर 10th को आए, तो 4th के बाद 6th को, दैट वाज द ड्यूरेशन, वो पेन उनको ज्यादा था. जलोकावचरण के बाद उनका पेन थोड़ा कम हो गया था. सो मेडिसिन गिवन वॉज चंद्रकला. आई टेल यू द रीजन बिहाइंड गिविंग दिस मेडिसिन लेटर ऑन. जस्ट मैं अभी मेडिसिन के नाम बताती हूँ यहाँ पे. सो चंद्रकला दिया था 2 TDS, सूक्ष्म त्रिफला दिया था 2 TDS, परिपाठादि काढ़ा 3 TSP 3 टेबलस्पून ट्वाइस डेली. अमलारी करके सिम्को कंपनी की मेडिसिन आती है, विच हैज पित्त शामक मेडिसिन अलॉन्ग विथ वंगभस्म. सो भीरू पेशेंट है या ऐसे पेशेंट्स में इट वर्क्स बेटर, क्योंकि वो मन पे भी काम करता है, शुक्र धातु पे भी काम करता है. सो जहाँ हमको थोड़ा सा वैलर, थोड़ा साहस चाहिए, ऐसे इसमें भी हम लोग अमलारी यूज कर सकते हैं. अनंतादिवटी इज माय कॉम्बिनेशन. इट इज मतलब उसका फॉर्मुलेशन में ओनली 3 मेन दवाई या ओनली 3 ड्रग्स आई हैव यूज्ड. दैट इज सारिवा, तरुणी, तरुणी यानी गुलाब, एंड थर्ड इज उशीर. और वो सारिवा फांट का ही भावना देके उसके मैंने टैबलेट्स बना के रखे हैं. सो आई यूज इट वेन एवर देर इज पित्त का वृद्धि, स्पेशली ऑफ उष्ण तीक्ष्ण गुण के. सो अनंतादिवती 2 TDS, अभिपत्तिकर वटी, वो भी टैबलेट फॉर्म में. पेशेंट फील्स कंफर्टेबल टेकिंग इट इन अ टैबलेट फॉर्म देन इन चूर्ण फॉर्म. सो 2BD, महामंजिष्ठादिक्वाद घनवटी. सी ऑल दिस मेडिसिन वेर नॉट गिवन वन एट कंप्लीटली टुगेदर, वो स्टेज वाइज था, बट दिस ऑल मेडिसिन वेर गिवन एट सम स्टेज और द अदर. सो पहले जो लिखा हुआ है दैट वाज गिवन एट एन अर्लियर स्टेज. महामंजिष्ठादि या रूबिक्लिन जो था वो बाद में, वो मार्क्स निकालने के, कम करने के लिए, वो लाइटन अप करने के लिए फिर वो दिया था. एंड TJ इज त्रिफला गूगल, सो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गुड, वेरी गुड पेन किलर. सो ये डे 6th का है, मतलब ये 4th को लगाया हुआ लीच का है. उसके बाद का दिस इज ऑन 6th ऑफ February. तो 6 फेब को वो पूरा ड्राई आउट हो गया था, ड्राई आउट होके वो पिन पॉइंटेड हुए थे. और जो स्कैप फॉर्मेशन है, दिस इज ड्राई फॉर्म ऑफ स्कैप फॉर्मेशन. एंड लेटर ऑन वो उसके पूरे 17 को जब उनका लास्ट विजिट था, तभी कंप्लीटली वो निकल गए थे. और ये थोड़े मार्क्स थे पर वो भी निकल गए. सो ये मार्क्स निकलने के लिए आई हैड गिवन माय पिगमेंटेशन का क्रीम. उसके प्रीवियसली थोड़ा जलन था, इसलिए बनहिल क्रीम दिया था. एंड इमीडिएटली जब पहले वो आए थे बताने के लिए, तभी यष्टि, रक्तचंदन और तरुणी, तरुणी इज गुलाब, इनका लोकल एप्लीकेशन बताया था. सो दिस इज हाउ द पेशेंट वॉज ट्रीटेड. यहाँ पे कोई भी वमन विरेचन कुछ दिया नहीं था. जलोकावचरण भी ओनली एक बार ही किया था. लुकिंग एट दिस केस, ये केस थोड़ा सा यूनिक मेरे लिए ऐसे है, बिकॉज पेशेंट इज माय नेबर, एंड इनका फर्स्ट विजिट वाज ऑन 5th, एंड 6th को इवनिंग को आई वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप. सो इनका पूरा मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही ट्रीटमेंट किया हुआ है. सो इनका जो मैंने डेली के फोटोज मंगाए थे, मेरे पास इनका इतना अच्छा कलेक्शन हुआ था कि ये स्टेप के बाद ये होगा. आई वॉज टेलिंग हिम एंड ही वॉज गेटिंग द इरप्शंस इन दैट मैनर, एंड ही वॉज वेरी कूल. बेसिकली कैसे होते हैं, जब पेशेंट सीनियर सिटीजन्स होते हैं, एज आई हैव रिटन हियर की सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह रहे थे. उनकी लड़की, शी वॉज मैरिड, शी वॉज स्टेइंग ओवरसीज, तो यहाँ पे कोई नहीं था उनका. महाराष्ट्र में ही उनके कोई नहीं थे, बाकी के उनके गांव में नेबर्स थे. एंड दिस वॉज देयर फर्स्ट विजिट टू मी. और ये जब हुआ था, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, ही हैड ऑल्सो पास्ड अवे प्रीवियसली लॉकडाउन के बीच में. सो दे हैड नोवेयर टू गो, ऐसा थोड़ा हुआ था. दे वेर कंफ्यूज कि अभी आपसे ट्रीटमेंट ले या क्या करे. सो पहले यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस उनको अपने में क्रिएट करना पड़ता है, उनको पे थोड़ा शांत करना पड़ता है. सो हियर द पेशेंट हैड कम टू मी ऑन 5th एंड शोन मी, ये पेट पे था. सो एब्डोमेन पे, लेफ्ट साइड पे आगे से पीछे तक आया हुआ था.
5th को बताया उन्होंने, एंड मैंने इरप्शंस वेयर ऑन 4th, छोटे छोटे बॉयज से बताने को 5th को आए, एंड हमने 6th को इमीडिएटली उनको जलोकावचरण लगाया किया था। सो यहाँ पे जो ये दिखता है ना, ये उनका एप्लीकेशन का थोड़ा रह गया, ड्राइड फॉर्म का दिख रहा है यहाँ पे जो है वो। तो इनको भी ज्येष्ठमध, यष्टि एंड उशिर, यही कॉम्बिनेशन रोज वाटर में लगाने के लिए बताया था। सो ये 6th को हमने उनको लगाया था। फर्स्ट केस भी 2023 की थी, ये भी 2023 की थी, और एक आगे के भी 2 केसेस है, वो भी 2023 के थे। सो आई हैड मेनी केसेस इन 2023 एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन कि हर्पिस तो हर साल होता है, पर ये साल इतने क्यों आए हैं। सो आई गॉट दैट आफ्टर रीडिंग अ रिसर्च पेपर कि कोरोना का जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन लेने के बाद इसका इंस्टेंस बढ़ गया है। सो दैट इज हाउ आई कुड को रिलेट विद इट। तो यहाँ पे देखा है चंद्रकला, त्रिफला गुगुल, परिपाठादि काढ़ा, सारीवा घनवटी, अनंतादि, ये इनको दिया था। यहाँ पे ये वीडियोस है, ये देखिए। सो ये हीलिंग प्रोसेस में स्टार्ट हुए थे। एज यू कैन सी यहाँ पे वो छोटे हो गए हैं एंड थोड़े डार्क। वो हीलिंग प्रोसेस में जब होते हैं ना, तो वो थोड़े डार्क हो जाते हैं। अंदर का जो एक्सुडेट है, एज यू कैन सी, वापस बताती हूँ, बैक साइड का जो है उसमें कलेक्शन नहीं है, वो ड्राइड आउट है। और जब ड्राई आउट होता है वो येलोइश ज्यादा दिखाई देता है। ये उसके आगे का है वीडियो। ये देखो, ये और ड्राई आउट होके वो निकल गया है। ये जो डार्क दिखता है वो जो लेप लगाया वो रखा रह गया है। दिस इज ऑल ड्राइड, दिस इज नोन एज कैप फॉर्मेशन। सो द पेशेंट इज गेटिंग बेटर। तुझा फोन वाजतोय काय का येतो? ओके। सो अभी ये जो है ये इरप्टिव फेज में है। एज आई शोड प्रीवियसली कि पहले रहते हैं वो वेजिकल लिक्विड फीलिंग होता है, उसके बाद ये थोड़ा ड्राई आउट फॉर्म में ऐसे आता है, देन उसका कलर चेंज होके वो थोड़ा सा पर्पलिश ब्लू में चला जाता है। उसके बाद ये ड्राई स्कॉब से और ये सब निकलना शुरू हो जाता है। वो निकलते वक्त ऐसे हो जाता है। एंड द लास्ट इज दिस। सो ये केस में ये कंप्लीटली ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ था। मेडिसिन उनको पहले दिए थे हफ्ते भर के लिए, एंड जलो का भी एक ही बार लगाए थे, बट बहुत अच्छे से उनका, बहुत अच्छे से हील अप हुआ था। जी नेक्स्ट केस, हाँ ये देखो, दिस इज द लास्ट। जब वो लास्ट मुझे बताने के लिए आए थे 13th को, तभी ये था। स्टार्टिंग में थोड़ा जात्यादी तेल भी यहाँ पे दिया था जब ये निकलना था। ये एक बार निकल गया, उसके बाद जात्यादी तेल बंद करके फिर मेरा ही क्रीम मैंने उनको दिया था। ये भी बाद में भर गया, ये भी ड्रॉट्स नहीं रहे। इसके बाद के पिक्चर्स फिर नहीं लिए गए। ये वीआईपी केसेस ऐसा ही, शी इज माई थेरेपिस्ट। अभी वो, ये भी 2023 का ही है। बाकी पेशेंट्स का देख के शी कुड मेक आउट, सिर्फ उसको 2 ही, ये पीठ पे है, बैक पे आए हुए हैं, सिर्फ 2 ही ब्लिस्टर्स थे, एंड शी कुड मेक आउट। शी हरसेल्फ केम एंड टोल्ड मी कि डॉक्टर मॅडम मुझे नागिण झाली आहे मला. बोला अरे वाह, डायग्नोसिस भी तुझे करना हो गया, बिकॉज शी हैड सीन सो मेनी केसेस इन द क्लिनिक एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। देर इज अ मिथ अबाउट नागिन सेइंग कि अगर नागिन हो गया, अगर उसने कंप्लीट सर्कल कर दिया तो पेशेंट डाइज। एक्चुअली नागिन में कभी कंप्लीट सर्कल होता नहीं है, बिकॉज वो, एज वी सॉ, कि वो सेंसरी नर्व पे अटैच होता है। वो एक ही नर्व का जो, जहां तक उसका फ्लो या सप्लाई है तब तक ही होता है। एंड अपने बॉडी में सिस्टम ऐसा है कि वी हैव नर्व्स ऑन बायलैटरल साइड, सो इट डजंट कि लेफ्ट वाला राइट को भी सप्लाई करता है, ऐसे कभी होता नहीं है। सो नेचुरली नागिन कभी कंप्लीट सर्कल नहीं करता है। तो दैट इज अ मिथ, बट शी वॉज क्राइंग, शी वॉज वेरी स्केर्ड अबाउट इट। तो इतने ही दोनों इसमें हमने जलोकावचरण कर दिया है, इट वॉज ओवर। उसके ऊपर उसके इरप्शंस आए नहीं। दिस केसेस ऑफ माई मदर्स, इनका क्या हुआ था बचपन में, आई शी डजंट रिमेम्बर द एज, बट उनको बहुत पहले हर्पिस होके गया था। एंड उसके बाद बहुत साल, मतलब मिड एज में उनको हर साल काजू खाने के बाद वो ही एरिया पे खुजली एंड जलन होती थी हर साल। सो आफ्टर फ्यू इयर्स शी स्टॉप्ड हैविंग काजू एंड पिस्ता, स्पेशली काजू। काजू से बहुत उनको तकलीफ होती थी।
बाद में जब मैं बीएमएस कर रही थी, उनको मैंने वमन विरेचन तब किया था, उसके बाद उनको कभी इरप्शंस भी आए नहीं थे और उनका वो पेन भी कम हुआ था। तो टिल 2023 अगेन इतने सालों के बाद आने का रीजन कुड बी reactivation. Causative factors could be one of those as we have seen previously. बट इनको भी इतने ही आए थे, and इनको भी यहाँ पे ही जलौकावचरण किया, चंद्रकला एंड परिपाठादि कंटिन्यू रखा, इसके बाद इरप्शंस बढ़े नहीं। सो अर्लियर द ट्रीटमेंट बेटर द रिजल्ट्स। जितना वो स्प्रेड इसमें आएगा उतना वो कंट्रोल में आने के लिए टाइम लग सकता है। ये और एक केस है, एक्जिला में था, बट एज यू कैन सी कि वो आई तभी ही इतना था, ये एक्सुडेट ड्राई अप हुआ था। सो इट वाज कि मेजर जो स्प्रेडिंग था वो उसका रुक गया था, उसके आगे ये अभी हीलिंग में ही आ गया था। तो इसमें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। दिस वन केस ये भी बहुत अलग है। इनका क्या हुआ था, इन दी सितंबर ऑफ 2023 प्री सिम्टम्स थे। सो प्री सिम्टम्स इनके क्या थे कि कमर में उनको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे दर्द हुआ था, जाम हुआ है ऐसे वो बता रहे थे कि जखडल्यासारखं वाटतंय, दैट इज हिज वर्ड। एंड थोड़ा सा आरक्तता आई थी, थोड़ा सा ईचिंग हो रहा था। तो तभी मैंने उनको, कुछ इरप्शन नहीं था, कुछ रेड ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा रेडिश पैच हुआ था। आई फेल्ट कि दिस इज अ प्री सिम्टम, और इसलिए इनको सूक्ष्म त्रिफला, चंद्रकला, रसपाचक और परिपाठादि दिया था। 13 को अगेन उनको मैंने पेट में से एरेंडल लेने को बोला था कि सौम्य विरेचन हो जाए। अलोंग विद दैट काया मनुका, मतलब अपना मुनक्का जो रहता है पानी में भिगो के थोड़ा फूल जाए, देन कंज्यूम करने को बोला था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वो स्कैटर्ड, थोड़ा जनरलाइज, मैंने जैसे वैरायटी आपको बताया था ना, वैसे कि वो लेफ्ट कान के पीछे वहां पे थोड़ा सा रेडिश और स्वेलिंग आ गया था, या लेफ्ट पार्श्व में हुआ था, और लेफ्ट थाई पे हुआ था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फोड़ी आया, थोड़ा सा जलन हुआ, और वहीं पे वो रुक गया। सो उसके आगे आया नहीं बिकॉज ऑफ दिस मेडिकेशन। सो इतने में रुक गया। अभी इससे ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे, अक्टूबर अभी आ ही रहा है, सो अक्टूबर में विल गो फॉर विरेचन। सो वी स्टार्टेड त्रिफला घृत स्नेहपान फॉर विरेचन ऑन 9th। एंड 9th के बाद उनका 16 को कंप्लीट स्नेहन स्वेदन किया। स्नेहन स्वेदन जब कर रहे थे तभी आई कुड फील, ये जो फोटो जो है ना, वो उनको घर से उन्होंने मुझे बताया कि मेरा हाथ ना 2 दिन से दुख रहा है, मेरा ऐसा जखड़ा जैसे लग रहा है। 16 को उन्होंने मुझे बताया, और तभी नेक्स्ट डे हमारा विरेचन डिसाइड हो गया था, तो हमने विरेचन किया। विरेचन के दिन इवनिंग को ही मुझे जलौकावचरण करना पड़ा, बिकॉज उनको हाथ पे उंगलियों तक आ गया था। एंड ये पेशेंट थोड़े अगेन भीरू ही पेशेंट है, हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, दे हैव नो किड्स। तो उनको वो एक डर बैठा रहता है कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो हु विल बी देयर फॉर अस। इनका भी काउंसलिंग मुझे बहुत बार करना पड़ता है। अभी और रिसेंटली आज का भी आई विल से, आई हैव इट। ये लास्ट वीक में ही उनको अभी वापस जलौकावचरण करना पड़ा, बिकॉज अभी वापस उनको आ गया है। और ये आने से पहले, दिस इज इन 2023, इन 2022 उनको फेशियल पाल्सी आया था। सो एज आई सेड, वो रैमसे हंट सिंड्रोम वो भी हुआ था। इनको बचपन में चिकन पॉक्स भी हुआ था। सो टिपिकल पित्त प्रकृति, ओल्ड एज, ये सब देख के अभी उनको इम्यूनिटी बूस्टर का मुझे ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ने वाला है। सो इनको करते वक्त जो ट्रीटमेंट था वो प्रीवियस बताया वैसे ही था कि चंद्रकला, शतधौत घृत इनको एप्लीकेशन के लिए दिया था, पेट में गुलकंद भी दिया था, गंधर्व हरितकी दी थी, सारीवा दी थी, और बाद में उनको पेन काफी रहा था बहुत दिनों तक, तभी विशत इंदुवटी मैंने स्टार्ट कर दी थी। ये जो आगे की केस है, ये केस का थोड़ा अलग ही है कि ये पेशेंट को खुद के पास ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं होता था। शी हैड एन एल्डरली मदर इन लॉ, बेड रिडन नहीं थी, बट ये इनसे भी बड़ी तो 80s में थी। हस्बैंड घर पे कुछ काम नहीं करते थे, एंड मदर इन लॉ का पूरा बेड पे ही था, हस्बैंड का पूरा था, सब उनको करना पड़ता था, एंड खुद के पास ध्यान नहीं था, बहुत चिड़चिड़ करती थी ये।
तो इनको जब पहले व्हेन शी केम टू मी ऑन दी एट द फर्स्ट विजिट इटसेल्फ, तभी मैंने उनको बोला था कि ये इरप्शंस आ रहे, ये नेचुरली अभी जो दिख रहा है, ये पैटर्न जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, उनको इवन लिप्स पे भी थोड़ा ड्राइनेस आ गया है। सो दिस इज टिपिकल ऑफ अग्नि विसर्प, वी विल नीड टू टेक द ट्रीटमेंट। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे आए थे ना, तब सिर्फ आईब्रो के ऊपर एक छोटा सा पिटिका था, और तभी इनको सूक्ष्म त्रिफला, चंद्रकला एंड रसायन घन दी थी, और उनको बोला था बताने के लिए आ जाना। तो वो तभी इमिजिएटली आए नहीं, एंड देन जब ये बढ़ गया उसके बाद आए। रीजन बीइंग, जब फर्स्ट इरप्शन दैट वाज ऑन 2 सितंबर, 2 तारीख को जब इरप्शन था, कौन मुझे थर्ड को बताया, एक ही था, उनको मैंने बताया था कि दवाई ले लो। 6 को उनको एक साइड पे जैसे यहाँ पे इरप्शन दिख रहा है, ही शी केम टू शो मी ऑन 6, पहले सेकेंड को नहीं आए थे। मेडिसिन से थोड़ा कम हो रहा है लगा, बट उनको रात में नींद नहीं लगी, तो पेन किलर लिया तो भी नींद नहीं लगी। सो मेरे पास जब वो जलौकावचरण लगाने करने आए थे, दैट वाज ऑन 8th को हमने जब लगाया, इट वाज ऑफ दिस टाइप कि उनको पूरा स्वेलिंग आ गया था, उनका आग भी नहीं खुल रहा था, वन साइड पूरा उनका स्वेल्ड अप था, एंड उनको जलो का ये कंडीशन में शी वॉज स्नोरिंग। मतलब लास्ट 2 days से 6, 7 और 8, 2-3 दिन से नींद ही नहीं आई, इतना वो पेन हो रहा था, थ्रॉबिंग पेन बता रहे थे। सो द मोमेंट ये जलौका ने उनका काम चालू किया, वहां पे ही वो सो गए। तो इनका हमने अगेन 3 दिन के बाद 11th को रिपीट किया, बिकॉज सिविरिटी ज्यादा था। यहाँ पे इफ यू कैन सी, नोज के टिप पे भी देखिए, इवन हियर ऑल्सो शी हैड द इरप्शंस, यहाँ पे भी बहुत ड्राइनेस आ गया था। सो इन दिस वे वी ट्रीटेड हर। आरक्त पीटिका मैंने बताया वैसे लेफ्ट आईब्रो पे था। इंटरनल मेडिसिन में इनको मैंने परिपाठादि बताया था लेने के लिए, बट शी स्टार्टेड परिपाठादि ऑन 16th। मेडिकेशन में भी शी वॉज वेरी इरेग्युलर, बट स्टिल जलौका डिड देयर जॉब, और वो शी गॉट रिलीफ। यहाँ पे भी यष्टि चंदन ये सब लगाने को बताया था। द पेशेंट सेड कि एप्लीकेशन मुझे बना के दो। दिस इज द पेशेंट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस। उसके पहले चूर्ण फॉर्म में ही मैं देती थी, बट देन पेशेंट वॉज रिलक्टेंट कि वो लगाते वक्त अटक जाता है, वो निकलता नहीं है, वॉश करने को और प्रॉब्लम आता है। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग इट इन अ क्रीम फॉर्म। ये लगाओ, एप्लीकेशन स्मूथली हो जाता है, वहां पे टिकता भी है, यू डोंट नीड टू फस अबाउट इट। ही इज वन ऑफ द सीनियर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इन थाने। इनको भी ऑप्थेल्मिकस ही था। ऑप्थेल्मिकस के भी बहुत सारे केसेस आ जाते हैं अपने पास। तो मेडिसिन उन्होंने खुद के लिए थे, पर स्वेलिंग था और स्वेलिंग नहीं जा रहा था, पेन काफी नहीं था, तो उनको फिर हमने जलौका लगाया। एंड आई हैव सीन दिस इन स्पेशली इन अग्नि विसर्प, कि वेर एवर देर इज इरप्शंस ना, सिविरिटी है, श्रोत है, पेशेंट अगर पेन में है, तो जलौका लगाते वक्त वो वहां पे टेबल पे ही आपके सो जाता है। इतना वो रिलीफ देता है जलौका, प्रेशर भी कम करता है, पेन भी कम कर देता है। ये हमने रिपीट लगाया था, पहले 4th को लगाया था, देन 12th को लगाया था। तो जब हफ्ते भर के बाद लगाया था, पहले के लीजन्स पूरा ड्राई आउट हो गए थे। ये अपुनर्भव के लिए सेकेंड टाइम हमने लगाया था। ये जो केस थी अगेन सीनियर सिटीजन, इन ही वॉज वेरी इंथुजियास्टिक द डे फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम टू माय क्लिनिक। ही सेड मैंने तो असाइक्लोविर स्टार्ट किया है, बट आई हैव हर्ड कि इसके लिए लीच थेरेपी किया जाता है, सो आई वांटेड टू ट्राई इट। तो हमने जब फर्स्ट स्टार्ट किया, हमने सिर्फ लीच थेरेपी फर्स्ट विजिट पे ही लीच लगाई थी। एक्चुअली इनका जो है वो राइट साइड पे है, बट ही वॉज सो इंथुजियास्टिक, वो खुद के ही फोटोज मुझे सेल्फीज भेजते थे। सो ये अगर राइट में दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है। सो जब पहले लगाया था, तभी बहुत इरप्शंस नहीं थे, इट वॉज मोर, माइट बी साइक्लोवीर भी स्टार्ट था, आई डोंट नो द रीजन, बट इरप्शंस काफी नहीं आए थे। बट नेत्रमल बहुत था, वो ऐसा स्टिकी येलोइश व्हाइट होता था। जलौकावचरण के बाद उनका नेत्रमल पूरा निकल गया, पर जो ऑप्थेल्मिकस का रहता है ट्राइजेमिनल के ऊपर, तो यहाँ पे वो खींचा थोड़ा दिख रहा है, तो स्वेलिंग था। एंड ही वॉज कंसर्न अबाउट इट, मेरा अभी आई का पोजीशन ऐसे ही तो नहीं होगा, बोला ऐसे कुछ नहीं होता है। और कर्णमूल, नेत्र, कपोल, अब ऐसे पूरा जगह वो उनको हेवीनेस लग रहा था। ओवर द पीरियड वो कंप्लीटली निकल गया, स्किन पे इवन कहीं पे भी जलौका का भी मार्क नहीं रहा। सो आई विल से, एंड ये
many times what happens, you do the treatment and later on you start to see कि ग्रंथक में कहाँ पे आपको रेफरेंसेस मिलते हैं. सो मुझे इसमें एक रेफरेंस ऐसा मिला कि जिसमें लिखा है कि पूरी ट्रीटमेंट एक तरफ और जलों का रक्त मोक्षण एक तरफ. सो इम्पोर्टेंस ऑफ रक्त मोक्षण इन अग्नि विसर्प इज सच कि वो सिर्फ करो, आगे की ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एंड वैरायटी बहुत कंट्रोल या कंसाइज हो जाती है. से इनको भी हमने एक ही बार लीच थेरेपी की थी एप्लीकेशन. उसके बाद ना थोड़ा सा उनको जो नेत्रमल था उसके लिए मैंने त्रिफला क्वाथ का धावन बताया था. सो त्रिफला काढ़ा बना के मलमल के कॉटन में कपड़े में उसको छानना है कंप्लीटली एंड देन वॉश के लिए यूज करना है, ऐसे बताया था. ये जो केस थी इसमें द पेशेंट वाज सच कि ट्रीटमेंट हो गया था कंप्लीटली, बट उसके बाद का स्वेलिंग एंड पेन नहीं जा रहा था. तो आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन दैट डे, सो हमने वीडियो कॉल पे ही पूरा कंसल्टेशन किया था. इसमें भी 10 दिन में या फिर फोर्टनाइट में कंप्लीटली रिलीफ मिल गया था. पेन था इसलिए हम लोग ने मांसोपाचक एंड विषतिंदु ये दोनों के ऊपर ज्यादा भर दिया. एंड विषतिन परिपाठादि जो काढ़ा है वो पोस्ट पुनर्भव के लिए भी लॉन्गर ड्यूरेशन हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वैरायटी ऑफ पेशेंट्स वे ट्रीटेड. मेडिसिन में बहुत वैरायटी नहीं थी, कंडीशंस डिफरेंट थी, बट एवरीथिंग अंडर दिस. अभी अग्निविसर्प अपने शास्त्र में कहाँ बताया है? सो अग्निविसर्प का जो बताया है वो चरक सूत्र स्थान में 18th चैप्टर में बताया हुआ है. उसमें लिखा जैसा है कि पित्त का प्रकोप होता है एंड वो रक्त एंड त्वचा ये दोनों में सर्पण करता है. सर्पण मतलब उसका जो एक्शन है वो अंडर द स्किन, वो बाह्य मार्ग में ही काम करता है. एंड द सिम्टम्स आर शोफ एंड सराग. तो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होता है एंड राग आरक्तता रहती है. दोषो दुष्ट संग्रह देखेंगे तो पित्त प्रधान होता है, त्रिदोष होता है पर पित्त प्रधान होता है. रक्त धातु में मेजरली दुष्टि हमें दिखाई देती है. दारुण स्वभाव है बिकॉज ये तीव्र वेदना देता है, कृच्छ्र साध्य, इसका स्प्रेड फास्ट है इसलिए उसको दारुण स्वभावज बोला है. इसमें प्रसरणशीलता है, वो स्प्रेड जल्दी हो जाता है. बाह्य मार्ग है तो दिखता ज्यादा है. सो निदान सेवन जनरली इसमें विहारज ज्यादा दिखता है, आहार से भी विहारज सेवन ज्यादा दिखाई देता है. पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है. रक्त व स्रोतस में इसकी उत्पत्ति होती है. रक्त प्रधान धातु की दृष्टि है अलॉन्ग विथ रक्त, त्वचा, मांस एंड लसिका इनमें भी शैथिल्य, शैथिल्य यानी कर्म हानि ऐसे बताया है चक्रपाणी टीका में. सो वो शैथिल्य वहां पे उनका कर्म बराबर से होता नहीं है. कर्म न होने की वजह से वहां पे कलेक्शन शुरू हो जाता है, इसलिए लसिका, रक्त या त्वचा में आरक्तता, बल्जिंग ये सब होना शुरू हो जाता है. एंड बाह्य एंड अभ्यंतर, हमने अभ्यंतर का भी देखा वैसे कि अभ्यंतर में माइट बी जीआई ट्रैक, इट कैन बी एनल पेरी एनल रीजन, इट कैन बी नियर बटक्स, बिकॉज ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन में भी पॉसिबल है. तो आश्रय उसका बाह्य एंड अभ्यंतर दोनों बताया है शास्त्र में भी. सो इसमें जब हम लोग देखते हैं टाइप्स तो एकल हो सकता है बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल. त्रिदोषज बताया है मेजरली, पित्तज का बताया है, पर एकल भी हो सकता है, द्वंद्वज भी हो सकता है, त्रिदोषज भी हो सकता है. जब द्वंद्वज होते हैं ना वो स्पेसिफिक उसके अलग अलग हमको लक्षण दिखाई देते हैं. तो लक्षण हम लोग कैसे बताएंगे? हाँ. सो अगर वात पित्तज है तो अग्निविसर्प है जो अभी हमने देखे वो, कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वो कोयले के जो निखारा बोलते हैं ना, बर्न्ट कोल कोल, उसमें जैसे गरम होता है या बर्न होता है उतना उसमें निखारा है जैसा भाजल्याचा, उतना दाहकता उसमें होती है और उतना बड़ा फोड़ा या वेसिकल फॉर्मेशन होता है. ग्रंथि विसर्प जो होता है बिकॉज ऑफ वात कफज, यहाँ पे ग्रंथि फॉर्मेशन है, वहां पे ज्यादा पेन नहीं है बट कड़क या गांठ बन जाती है. एंड पित्त कफज में जो बताया वो करदम टाइप का विसर्प बताया. सो करदम जो है ना वो चिखल मतलब गीला मट्टी का जैसे होता है, दलदल वो टाइप का होता है. बहुत उसमें स्राव, बहुत वो पेचीदा या उसमें बहुत स्रावी टाइप ज्यादा हो जाता है. सो दैट इज हाउ वी कैन मेक द डिफ्रेंसिएशन. मसूरी का, रोमांतिका, शीतला इसके साथ हम लोग उसका डीडी कर सकते हैं. सो मसूरी का इस चिकन पॉक्स एज वी सी कि वो ओल्ड एज में ज्यादा नहीं होता है, वो यंग एज में ज्यादा होता है. रोमांटिका यानी मीजल्स,
सो मीजल्स में भी हम लोग उसको गोवर बोलते हैं, वैसे हो जाता है। एंड जो शीतला है, शीतला यानी स्मॉल पॉक्स, वो तो अभी दिखता नहीं है, देवी जो बोलते हैं। सो इसमें भी दीज आर ऑल इरप्टिव टाइप ऑफ फीवर्स, और ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग अग्निविसर्प के साथ देख सकते हैं। चिकित्सा जो वाग्भटाचार्य ने बताई है उसमें लंघन बताया। सो लंघन कैन बी कंप्लीट लंघन या सुपाच्य आहार, पर इसमें रुक्षण बताया है। सो रुक्षण में ज्यादा द्रव आहार नहीं लेना है, ड्राई फॉर्म में भर्जित आहार ज्यादा लेना है। एंड मेजरली इसमें बताया कि फर्स्ट फ्यू डेज, मेजरली 2 to 3 days, घृतपान नहीं करना है, स्नेहन शुड बी अवॉइडेड। सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्नेहन पहले विजिट में पेशेंट को स्टार्ट नहीं करना है। रक्तमोक्षण, एज आई सेड, रेफरेंस मुझे यहाँ पे मिला, एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षण एकतः, बाकी पूरी ट्रीटमेंट एक तरफ और रक्तमोक्षण एक तरफ। सो अगर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम करना है, सिम्टम्स को कंट्रोल में रखना है, पेशेंट को अर्ली रिलीफ देना है, तो रक्तमोक्षण करना है। आई विल शो लेटर ऑन कि रक्तमोक्षण में जलौकावचरण कैसे क्यों करें, एंड व्हाई नॉट सिरावेद, वो भी मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बता दूंगी। ट्रीटमेंट में बाकी वमन विरेचन, डिपेंडिंग अगर अपर बॉडी पार्ट में है तो वमन, ट्रंक रीजन एंड लोअर होगा तो विरेचन, ऐसे करना है। तिक्त द्रव्य ऑन ऑल टाइप्स में देना है, तो पान में भी देना है, महातिक्त द्रव्य भी, मतलब घृत में भी देना है। ऑल वैसे जो करना है वो तिक्त द्रव्य का करना है। लेपन जो ग्रंथोक्त बताया है वो दुर्वा, चंदन, ये सब है। एज ए सेड, स्नेहन फर्स्ट फ्यू डेज के लिए अवॉइड करना है। चंद्रकला रस, वाय, तो चंद्रकला उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य से जो पित्त का विदग्धावस्था बढ़ा हुआ है वो कम करने के लिए सबसे बेस्ट है। सो स्तंभक, जहां से भी स्राव हो, रक्तस्राव भी हो, तो वो भी कंट्रोल करने के लिए चंद्रकला बताया है। सो रक्त प्रसादक है, स्तंभक द्रव्य से बना हुआ है। और रुधिर वाहिन्या, सो अपने जो ब्लड वेसल्स है उनको प्रसादन, उनका कार्य क्षमता भी बढ़ाने में मदद करती है। सो मस्तिष्क में भी काम करती है, मध्यम कोष्ठ में भी काम करती है, मध्यम रोग मार्ग में रक्त, ये रक्तज व्याधि है तो हमको नेचुरली इसमें भी उसका फायदा दिखता है। दाह, रक्तस्राव, ये सब कम करता है। सो yes, this is one of the choice of dravyas to be used in अग्नि विसर्प। परिपाठादि काढ़ा, परिपाठादि ऐसे नाम से हमको अपने जो बृहत्त्रयी है वहां पे कहीं मिलता नहीं है काढ़ा, ये अनुभूत है, लेटर ऑन यूज किया गया है। ये परपट्यादि काढ़ा नाम से भी मिलता है। इसका जो एक्शन है कंप्लीटली त्वचा पर है। सो इंजेक्शन या एक्सक्रीशन कंप्लीटली उसका त्वचा से ही होता है, और उसका यूसेज ऑल टाइप्स ऑफ इरप्टिव फीवर्स में बताया है। सो इवन अग्नि विसर्प में भी परिपाठादि काढ़ा बहुत अच्छे से काम करता है। परिपाठादि चंद्रकला कहाँ यूज करना है, पित्त डेफिनेटली, पर पित्त में भी उष्ण और तीक्ष्ण गुण जहाँ बढ़ा है उसको काउंटर करने के लिए, जहाँ पे शीत द्रव्यात्मक दवाई चाहिए, वहीं पे हम लोग ये दोनों औषधियाँ यूज करेंगे। मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट कि कंडू होती है, कंडू ये पित्त की दाहकता की वजह से भी होता है, बिकॉज उष्ण गुण से वहां पे रुक्षता आती है, एंड रुक्षता कैन कॉज कंडू। सो कंडू इज नॉट ऑलवेज वात की वजह से, समटाइम्स वो पित्त की वजह से भी हो सकती है। एंड परिपाठादि में मृदु विरेचन का भी काम है, बिकॉज हरड़ा भी है उसमें, इस वजह से अलग से कोई हमको विरेचक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड घृतपान के बिना विरेचन भी नहीं कर सकते, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले यू स्टार्ट विद दिस। Yes, yes, I'll cover it within 2 minutes. हैंग हो गया। शतधौत, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। बेसिकली शतधौत का जो यूज है वो बर्न्स, चिकन पॉक्स, हर टाइप ऑफ जहाँ पे इरप्टिव है, जहाँ पे दाहकता है, वहां सब जगह हम यूज कर सकते हैं। ये इमल्सिव फॉर्म में है तो घृत से एप्लीकेशन ज्यादा बेटर पड़ता है। एंड पेशेंट लगाने में भी इस पेशेंट के लिए बहुत आसानी हो जाती है।
दाह शमन करता है, आरक्तता को कम करता है, ड्राइनेस जो आती है, ईचिंग जो होता है, सो अर्ली टू लेट स्टेजेस ऑफ अग्निविसर्प सभी में हम लोग शतधौत यूज कर सकते हैं। ये काउंटर इरिटेंट है, इससे किसी को भी इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन या कोई टाइप का एलर्जी रिएक्शन नहीं होता है। ये इवन बर्न्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। सी जनरली शतधौत बोलेंगे ना तो भी हम लोग सादा घी 10-100 बार धोया हुआ वैसे लेते हैं, बट इन माई प्रैक्टिस आई यूज वैरायटी ऑफ शतधौत। सो प्लेन शतधौत तो है ही, सहस्र धौत भी यूज करती हूँ, विच इज द घृत दैट इज वॉश्ड फॉर 1000 टाइम्स। अम्र हरिद्रा मिक्स करके भी, ये अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम्स में आई यूज, आई टॉक अबाउट इट सम टाइम लेटर, नॉट नाउ। रक्तचंदन वाला दुर्वादि घृत का ही बनाया हुआ शतधौत। सो नाउअडेज अग्निविसर्प में आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दुर्वादि शतधौत, बिकॉज वो कूलेंट एक्शन ज्यादा अच्छे से देता है। जलोकवचरण, वाय जलोकवचरण, क्योंकि वो अर्धव चिकित्सा बताइए इन ऑल टाइप्स ऑफ रक्तज व्याधि, और ये व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा भी बताई है, उस वजह से है। दुष्ट रक्त चिकित्सा में कैसे ये दोषों को निकालता भी है, और जीव रक्त न्यू फॉर्मेशन भी करता है। सो नीरक क्षीर विवक ये जो करता है वो जलव का भी करता है। सी वो शुद्ध रक्त की निर्मित भी करता है और अशुद्ध को निकाल भी देता है। सो क्विक रिलीफ इन दी सिम्टम्स, ये हमको जलौका से मिलता है, एंड जलौका से पेन रिलीफ भी बहुत अच्छा मिलता है। सो एनी टाइप ऑफ रक्त जो व्याधि, रक्त प्रदोष जो व्याधि, थिंक अबाउट जलौका वचरण। आई वोंट गो इनटू ऑल दिस। सो क्या क्या वी यूज एवरीथिंग, बट ये पूर्व कर्म एंड पश्चात कर्म अपने ग्रंथ में दिए हैं, वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन के बाद पेशेंट को जात्यादि तेल लगाने के लिए दीजिए, वो हीलिंग भी अच्छा करता है, एंड कहीं पे भी मार्क नहीं रहता है। सो जनरली व्हाट आई डू, पेशेंट का ड्रेसिंग में ही हल्दी और जात्यादि तेल उसी का ड्रेसिंग करके दे देती हूँ। सो थैंक यू, आई हैव कंप्लीटेड माय प्रेजेंटेशन। अगर कुछ क्वेरीज है तो डू लेट मी नो। थैंक यू। Hello, ma'am. You are mute, Dr. Hetal. Oh, Hello. sorry. Yeah. So, ma'am, we will have a question and answer session. I would like to thank ma'am for the informative and practical insight for their lecture. Of course, as an Ayurvedic practitioners, we do end up coming with a lot of challenges, as in where in the herpes zoster, how can we give quick relief and how can we do best management in terms of pain management also. So ma'am has shared her experience, and I would really appreciate her experience in this particular field. I would like to invite Dr. Rutuja Dubey ma'am. She is one of the founder of this present group. Ma'am is practicing as highly respected Ayurvedic gynecologist. She is serving as a trustee head of the department for Sri Roga Prasiti Tantra and professor at Nalasopara Ayurvedic Medical College. She has been recognized for her academic and medical contribution, receiving honors such as the Best Teacher Award and prestigious Sushruta Ratna Award. I welcome Dr. Rujuta ma'am for expert opinion. 1 minute, Dr. Hetal. Okay. Just to everyone that if people have any queries, they can also ask in the group. Yes, they can raise their question in the chat Yeah. box, or they can raise their hand also. And Yeah. but I would request participant to stick to the topic. Questions Yes. Hello, related to ma'am. the topic. On this topic. Yeah. Hello, ma'am. Hello. Yeah, thanks a lot for the team, बेला मैम और आप सबको. It was a wonderful session और कीर्ति मैम ने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से बताया. मेरा क्वेरी ये है कि मैम ने लोकल एप्लीकेशन घृत या इंटरनल स्नेहपान मना किया है शुरू के दिनों में, तो उसका रीजन मैं जानना चाहती हूँ. थैंक यू. So, yes, after expert opinion, we will take question answer. So let Rujita ma'am give the expert opinion first, and then we'll go on the topic of question answer. Definitely, Dr. Kirti ma'am will answer whatever can possible. Hello, everybody. First, I would like to congratulate Kirti because she has started the CME of this group. She is the first one who has taken the topic of Rakta Visarpa, and the topic was covered very nicely because she has given all the details of the disease
with the theoretical part, and also she has shown the every part of the theory, and also the practical view with the patient slides. She has given the treatment with great things, and she has told everything about the Visarpa. So I would like to say that it was a very nice session, who has given informations about the Visarpa to the members, and also given the confidence of Jalaukacharan, because always practitioners do get fearful things about Jalaukacharan, what will happen, whether we can apply it or not, or what will be the consequences, and about everything. So this was a very nice topic where she has given confidently the demo of the Raktavacharan, and with the photographs and patients' photographs. So it will be really useful for all the people who are in the group. And I think it was a very knowledgeable session, and everyone would have really enjoyed it. Thank you so much, Kirti. Thank you very much, all the participants. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Means a lot. Okay. We have few questions. Before I read out questions from the chat box, I think Dr. Sarojini has raised one question. So I would like ma'am to answer the question. Can you repeat the question again? Ma'am, you have said not to go for any Snehapana or local application of growth in the beginning phase. What is the reason? Not to give Snehapanam or Grita in the beginning. Yeah. According to Grantha that I have seen, I went through all the references. It shows कि if you start Grutapan, Snehapan immediately after Agni Visarpa, वो सर्पण जल्दी हो जाता है. It spreads faster. So not to give any Snehapan at least for first few days. So in my practice, I have seen कि at least for first 3 to 4 days, don't start any Snehapan. Later on, you can start. But in the meantime, do Jalaukavacharan and then start Snehapan. So सर्पण नहीं होता है, उसका spread नहीं होता है, वो arrested growth रह जाता है उसका. Okay, ma'am. But then local application, if Chatadhota growth, we can start? No. At the beginning, as I said, at the beginning, I used to start with lap only. Lipative. If the patient is comfortable using lap, always give lap. But Okay, ma'am. आजकल के पेशेंट बहुत फिनिकी हो गए हैं. So Yes. as we see, शतधौत में that was the slide कि उसमें emulsification है, which is not only स्नेह, it is स्नेह with water. So emulsify जब हो जाता है, क्रीम जब बन जाता है, उसमें वाटर कंटेंट भी आता है. So plain स्नेह से this is better option. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Next question we have from Arpita ma'am. That is अपुनर्भव चिकित्सा में क्या करना चाहिए हमने? पुनर्भव में ड्यूरिंग अक्टूबर, स्पेशली अक्टूबर हीट, विरेचन ये आइडियल होता है. बिकॉज एज वी सी कि चिकन पॉक्स कभी तो हो गया है, उसका मेमोरी रह गया बॉडी में, एंड लेटर ऑन वो जब रीएक्टिवेट हो जाता है उसके बाद हर्पिस हो रहा है. सो अगर ये मेमोरी रह रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से ये पित्त दोष है. सो पित्त दोष के लिए विरेचन बताया है. आई हैव, एज आई सेड अबाउट माई मदर, आई हैव गिवन विरेचन थ्राइस ईयरली वंस. ऐसे 3 साल उनको रेगुलर दिया, उसके बाद उनका रिकरेंस रुक गया था. सो अपुनर्भव के लिए दैट इज बेटर ऑप्शन. ओके मैम, थैंक यू मैम. डॉक्टर प्राप्ति सराफ का मैसेज है, व्हाई नॉट शीरावेद एंड व्हाई ओनली जलोकावचरण मैम? जलौकावचरण पेन पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है. एंड सेकेंडली ऐसे होता है कि एज आई सेड कि अगर ऑप्थेल्मिकस है तो यहाँ पे मुझे समटाइम्स सिरावेद करने में मुश्किल हो सकता है. जलौकावचरण मेरा ज्यादा इजी हो जाता है. एंड पेशेंट को हमारे सामने रहना, पेशेंट फील्स मोर क्या बोलूं, उसको कॉन्फिडेंट लगता है. सिरावेद जल्दी हो जाता है. ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ रक्त मोक्षण विथ जलोका, इफ पेशेंट इज टॉकिंग विथ यू, पेशेंट फील्स मोर सेटिस्फाइड कि पेशेंट ने मेरे साथ, डॉक्टर ने मेरे साथ इतना सब टाइम स्पेंड किया, मुझे कूल डाउन किया, मुझे थोड़ा सा सांत्वना की. सो वो भी एक फैक्टर आ जाता है, बिकॉज इसमें पेशेंट डर जल्दी जाता है. Thank you, ma'am. Next question we have from Dr. Pramila. Ma'am, if we do pure Ayurvedic treatment, then is there any need to start allopathic medicines too? नो. मैंने अभी जितने पे केसेस बताए, आई हैव नॉट गिवन अ सिंगल एलोपैथी मेडिसिन. ओनली वन केस जहाँ पे उन्होंने असाइक्लोविर स्टार्ट किया था एंड देन ही हैड कम टू मी. बट अदरवाइज ये कोई भी केसेस में आई हैड नॉट गिवन एनी एलोपैथी मेडिसिन. It's a wonderful cases, ma'am.
Really appreciating. Next question we have is Vaidya Bhagyashree. Is it also helpful to use pulsy neuron as it affects nerves? If yes, should it be started from start or later on, nerve strengthening and repair? Yes, at the beginning as we have seen कि प्री इरप्टिव एंड इरप्टिव फेज में पेन इतना नहीं है, पोस्ट इरप्टिव या क्रोनिक फेज में पेन ज्यादा है. सो आई वोंट से कि ईच एंड एवरी वन हैज द पेन एंड पल्सी न्यूरॉन शुड बी स्टार्टेड. पेन है तो देन स्टार्ट इट, बट गो इन अ फेजिक मैनर. सो पहले त्रिफला गुगुल दो, उसके बाद मांसपाचक एंड विषतिंदुक दो, एंड लेटर ऑन गो फॉर अस्थि मज्जा पाचक एंड पल्सी न्यूरॉन. प्लेन पालसी न्यूरॉन से कॉम्बिनेशन विथ अस्थि मज्जा पाचक ज्यादा अच्छा वर्क करता है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. If Dr. Prapti Saraf का question है, if Jaloka Ucharan is not done, then that severe pain subside with this medicines. Can the severe pain subside with this medicine? या इट विल सबसाइड. ओनली थिंग फिर डोसेज शायद बढ़ाना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ 2 BD यू कैन गिव इट फॉर QQDS कर सकते हो, या फिर बाकी थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, Okay, ma'am. बट हो जाता Okay. है. Okay. Next एज question आई we सेड, have. जस्ट वुमेन, वो एक पेशेंट मैंने बताया था जिनके बहुत Hmm. सारे फोटोज थे, मैंने उनका ऑनलाइन ही किया था. उनको एक ही बार जलौका लगाई थी, उसके बाद लगाई नहीं थी. सो सिर्फ मेडिसिन से भी उनका ट्रीट हो गया था. इट इज नॉट दैट, जस्ट टू रिड्यूस द टाइम ड्यूरेशन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए जलौकावचरण इज बेटर. Okay, ma'am. And how frequently this Jaloka Ucharan can be done? फॉर द सेम पेशेंट अल्टरनेट डे और वंस इन 3 days इज ओके. Okay, for the same patient. या Okay, ma'am. ओके, यहाँ पे मीनाक्षी मैम का कहना है कि जलों का उच्चारण मिलना इजी है क्या? मतलब उनका कहना है निर्विष जलों का इजीली मिल सकता है, तो कहाँ से मिलता है? देर आर एक्चुअल आजकल हार्वेस्टिंग भी करते हैं जलों का. देर आर डॉक्टर्स हु आर हार्वेस्टिंग जलों का. वी गेट इट वेरी इजीली एंड वो कुरियर भी कर देते हैं. तो थाना में तो आई गेट इट वेरी इजीली, बट आई थिंक वेस्टर्न में भी मिल जाते होंगे, मिल जाएंगे. दैट इज नॉट एन इशू. Okay, ma'am. Okay, I have a personal question from my side, ma'am. That sometime like this presentation you had showed as if like the patient has come to us in the initial stage, but in the practice we do get some kind of a cases where, as in the past they were treated for the herb zoster infection, and now they come to you only with the complaint of pain in that particular area or the burning sensation in that particular area. So how do we tackle that kind of a cases? Okay. So pain here is not because of वात, it is because of पित्त. वो तो Mm. बेसिक है. So यहाँ पे Yes, we'll ma'am. start with परिपाठादि काढ़ा, then we'll think of विरेचन because ओल्डर हो गया है. सो अभी Hmm. घृतपान करके विरेचन, एंड इफ Okay. रिक्वायर्ड फिर जैसे मेडिसिन बताया कि इट कैन बी मांसपाचक, विषतिंदुक, एंड इन अ लेटर ऑन स्टेज पालसी न्यूरॉन, अस्थि मज्जा पाचक, ऐसे हम लोग जाएंगे. ओके, सो और एक क्वेश्चन है कि जैसे एलोपैथी में B12 देते हैं फॉर 3 मंथ्स न्यूरालजिया के लिए, तो आयुर्वेद में भी हम कुछ ऐसे मेडिसिन दे सकते हैं क्या, मैम? एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे हम ओके. लोग पित्त का ही विचार कर रहे हैं. तो यहाँ पे रक्त प्रसादन हम लोग चंद्रकला से कर ही देते हैं. सो अलग से ओके, मैम. B12 देने की जरूरत ही नहीं है. राइट, मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम डॉक्टर सिमरन. कैन वी रीयूज जलोका फॉर अनदर पेशेंट? हाँ, दैट वाज वन ऑफ द स्लाइड्स को घाई घाई में आज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. सो सेम जलों का आपको यूज करना है इन डिफरेंट पेशेंट. यूज इट आफ्टर अ फोर्टनाइट, नॉट बिफोर दैट. Okay, after fortnight we can या use it. 15 Okay, दिन के ma'am. बाद. यस. Yes, yes. I think we have done with all the questions in the chat box, and I would like Dr. Shweta to take on further. Yes, thank you. Before I can say, I think Dr. Arpita ma'am has raised the hand. Would you like to ask anything, Dr. Arpita? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि ऐसे मेरी जो हर्पीस की पेशेंट थी, तो बार हर साल में अक्टूबर में उनको होता ही था, इन स्पाइट ऑफ गिविंग विरेचन एंड एवरीथिंग। बट लेटर ऑन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव जब भी हुआ अक्टूबर में, तो उनको मैंने बहुत एकदम डीप हिस्ट्री लिया कि मतलब बता ही दो। तो शी सेड कि वोडका जब भी मैंने लास्ट ईयर में भी लिया था एंड दिस ईयर में भी लिया था, तभी वोडका लेने के बाद ये हो रहा है। सो वोडका वाज द कल्प्रिट, नॉट विरेचन देके कुछ ये करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड शी इज अ फीमेल पेशेंट, बहुत अच्छी ये है। सो वोडका का क्या रीजन हो सकता है, या वोडका एक कल्प्रिट हो सकता है क्या? वोडका अगेन बॉडी हीट ही बढ़ाएगा ना.
कोई भी एनी टाइप ऑफ अल्कोहल बॉडी हीट बढ़ाएगा ही, दैट इज द रूट कॉज। तो जनरली ना ऐसे वक्त पेशेंट्स को बोलना है कि डोंट टेक इट ऑन एम्प्टी स्टमक, थोड़ा खाना खा के फिर पी लेना, थोड़ा बॉडी हीट कम रहेगा फिर। ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन वी ऐड तिक्त घृतम ओरली फ्रॉम डॉक्टर रचना मेहता? Not on the first few days, not at least for first 3 to 4 days. Later on, yes, तिक्त द्रव्य is recommended. So अगर देते हो चलेगा, but रुक्ष आहार पहले few days बताया, लघु आहार एंड रुक्ष आहार तो पहले नहीं देना है। और Yes. थैंक यू मैम। Yes. So I would like to thank especially Dr. Kirti ma'am for taking time for our session and just being an president over there. उन्होंने हमारा invitation accept किया और आज यहाँ पे आए, and we are able to start first CME and it went so successful with all your support and presentation, and we started on time and we are mostly able to complete on time, and that's the big achievement because we all as a doctor know the importance of time. And खत्म करने से पहले we would like to appreciate Dr. Kirti ma'am, and I would like to share a presentation for that for a second. So yes, this is the token of appreciation from our side. Thank you so much. So yes, thank you, ma'am. It's great to have you in this evening and sharing all your knowledge with all the practitioners, and it would be benefit to each and everyone who is present here. बाकी जो भी लोग हैं, I would suggest अगर कुछ questions बाकी रह गए हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो please group में आप पूछ लेना. Madam would be there to answer everything, and I think we are good to go and end the sessions. Thank you everyone for joining, and I think Rujuta madam and Bila madam would like to add something more. श्वेता, जस्ट आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग। अगर कोई भी आगे के महीने के थर्ड सैटरडे को लेना चाहता है तो अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे वो अपना नाम और अपना जो टॉपिक है वो हमें भेज दे, फिर उसमें से हम लोग सिलेक्ट करके उनको कन्वे करेंगे। तो Yes. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एवरीवन हैज गॉट टैलेंट, एवरीवन हैज गॉट नॉलेज, so please participate and please show your talent by this CMEs, and आप अपने topics तैयार करिए और हर एक को मौका दिया जाएगा, so please participate on huge participation. Yes. Thank you. और सबसे ज्यादा I would like to ग्रुप में नहीं भेजें, हम तीनों में से किसी को भी भेज दें। And most beautifully, I like to thank Dr. Hetal for moderating session very well and supporting this event. So thank you, Dr. Hetal, for being Thank you. continuous support for this. And thank you very much, Kirti ma'am. Thank So you. yes, group is open for conversation. We have opened the group, and yes, ठीक है, please send. हमारा every third Saturday रहेगा. This time, 3 to same 4, time, 3 to 4. 3 to 4. 4. Thank you, Yes. ma'am. Thank See you. you Yes. everyone. Take care. Yes, bye-bye. Thank you, Take Jai Hector. care. Dhanvantari. Jai Thank you. Dhanvantari. Bye. Bye. Bye.